A satisfied customer is the best strategy of all. Hello everyone, myself Rahul Gujral. We are back at the Board Plus CUET series of business studies, and today the topic we have selected is very important for पढ़ाई के लिए भी, CUET के लिए भी, बोर्ड्स के लिए भी और रियल लाइफ के लिए भी. ठीक है. So the topic is rights and responsibilities of a consumer. अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपके क्या राइट्स हैं? जो 6 राइट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके सीयूटी के लिए, बोथ राइट. प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? क्या सिर्फ राइट्स मिलने चाहिए आपको सारे? नहीं, देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो दैट यू हैव टू फुलफिल. एज अ कंज्यूमर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. So let us now look at first the 6 rights of consumers, then look at the responsibilities of consumer. So the first right is, so we have 6 rights, right? So we have 6 rights. So first is right to safety. Right to safety. It means consumers have the right to be protected against goods and services that can pose health or life hazards. For example, you are buying an electronic item, right? आप गैस खरीद रहे हो, मतलब आप गैस स्टोव खरीद रहे हो, राइट? या फिर आप कोई स्विच एंड ऑल खरीद रहे हो, तो आप ये मेक श्योर करोगे, मतलब जो भी बना रहा है उसको, जो भी बेच रहा है, whoever is selling, whoever is manufacturing, that it should be as per the safety standards, right? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शुड हैव ISI सर्टिफिकेशन. अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उस पर ISI सर्टिफिकेशन होना चाहिए टू इंश्योर दैट इट इज सेफ टू यूज. If a defective microwave causes an accident, the consumer can raise a complaint. For example, you purchased a microwave and you got a shock due to that. So you can raise a complaint that this was not safe for a consumer. So this is your right to safety. You have the right to be safe when you are buying a good or service. Okay. Next, right to be informed. Right to be. This was first. This is second. Now, what is informed? We have the right to know about the details of the product, about the variants of the product. एक गाड़ी खरीदते हैं, एक बाइक खरीदते हैं, कितने सीसी की है, ठीक है, कितना माइलेज देती है, everything we ask. कार लेते हैं तब भी we ask. The mobile phone, if we are buying, we see what is the RAM, what is the ROM. We ask for every detail, and we have the right to ask. We have the right to be informed. So this is right to be informed. Consumers have the right to know about product details such as quality, quantity, ingredients, price and terms. कि क्या क्या टर्म्स है, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है, क्या वारंटी है, सब क्या गारंटी है, ठीक है, किसकी गारंटी, तो सब कुछ इज मेंशन्ड इन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड दैट यू हैव द राइट कि आपको सारी डिटेल्स मिले. Example, when buying a packed food item, the consumer must be informed about the manufacturing date, expiry date, price and ingredients. If incorrect or misleading information is provided, the consumer can file a complaint, right? So you have the right to ask about everything, ठीक है, बट अगर आपको wrong information दी होगी तो बाद में you can raise a case, you can file a complaint. This is your right to be informed. So first was right to safety, then right to be informed. Third is right to choose. Now the seller is showing you a lot of products, right? So you have the right कि आप उसमें से कौन सा चूज करो, या आप ना भी करो, कोई चूज आपको कोई पसंद नहीं है. So this is your right to choose. Consumers should be free to choose from a variety of products without being forced to buy any specific product. The seller cannot force you, sir यही वाला अच्छा है, यही लो, सब बेकार है. No, he can suggest you but he cannot force you, right? Example, a mobile company cannot force a customer to buy a specific model. The consumer can select the product based on their preference. If you are searching for a mobile, आप search करोगे best mobile under 15,000, best mobile under 20,000. So what you are doing? आप filter out कर रहे हो. क्या आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे? Is the website forcing you to buy? No. Ad वैड पॉप हो जाएंगे, that I know, but they cannot force you. This is your wish कि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्या चूज करना है. This is your right to choose. Now next is, this was third. The fourth is right to be heard. सुनना. Consumers have the right to voice their complaints and grievances against unfair practices. कि आपकी सुनी जाए. If a defective washing machine is sold, the consumers can file a complaint with the company and if unresolved, approach the consumer court. Okay. So what is this? कि आपकी सुनी जाएगी. आपकी सुनी जाएगी. For example, if they are providing you a product, for example, they are saying washing machine, but the washing machine का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर मोड है, वो चल ही नहीं रहे, ठीक है. जैसे कि रिंस, कपड़े रिंस करना, कपड़े को पहले गीला करके सुखाना है ना, ड्राई करना, ड्रायर नहीं चल रहा है वॉशिंग मशीन का, ऐसे याद रख लो. जो सुखाता है ना, जोर जोर से घूमता है, जिससे कपड़े सूख जाते हैं, वो नहीं चल रहा. तो फर्स्ट यू विल कॉल द कस्टमर केयर दैट आई हैव रिसीव्ड अ प्रोडक्ट जिसमें ड्रायर खराब है.
तो आपको जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट है वो उन्हीं कंपनी का, फॉर एग्जांपल मैंने सैमसंग की वॉशिंग मशीन खरीदी तो सैमसंग वाले मुझे बोलेंगे सर नो वरीज, वी आर सेंडिंग अ टीम, दे विल चेक एंड दे विल फिक्स इट, अदरवाइज नहीं फिक्स होगा तो आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया चलो अच्छी सर्विस। बट अगर मान लो वो कहे सर नो, ये आपकी गलती से हुआ है, हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, तो देन यू हैव द राइट टू रीच कंज्यूमर कोर्ट। और ये हम कब करेंगे, किसमें आएगा ये, राइट टू सीक रिड्रेसल में। अगर आपको हर्ट नहीं किया गया तो देन द नेक्स्ट राइट कम्स राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर हैव द राइट टू क्लेम कंपनसेशन और अ सॉल्यूशन इफ दे हैव बीन चीटेड और प्रोवाइडेड विद अ डिफेक्टिव गुड। अगर आपको चीट करा गया है, आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लिया हो या आपको गलत प्रोडक्ट दे दिया हो, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यू हैव द राइट कि आप जस्टिस को सीक करें, कहां पे, कंज्यूमर कोर्ट्स पे। एग्जांपल, इफ अ परचेज्ड कार हैज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, द कंज्यूमर कैन ईदर डिमांड अ रिप्लेसमेंट और रिपेयर और फाइल अ कंप्लेंट फॉर कंपनसेशन। तो आई होप हर्ड और सीक रिड्रेसल आपको समझ आ गया है। ठीक है, ये एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। This was your fifth. Now sixth is right to consumer education. Right to consumer education, sixth and last. ठीक है, फर्स्ट क्या था, सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। सेकंड क्या था, राइट टू चूज। थर्ड क्या था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। फोर्थ इज योर राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड। Fifth is seek redressal and sixth is consumer education. Now, consumer have the right to be educated about their rights and responsibilities to protect themselves against exploitation. Government programs like Jago Grahak Jago spread awareness about consumer rights. कंज्यूमर का राइट है कि उनको एजुकेट करा जाए उनके राइट्स के बारे में। कितना अजीब सा साउंड कर रहा है ना, बट यही सच है। कंज्यूमर के पास राइट है कि दे शुड नो देयर राइट्स अबाउट कंज्यूमर। कंज्यूमर राइट्स उनके पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के ऐड आते हैं, जागो ग्राहक जागो। आई नो मेरा सुर बहुत खराब है, बट वो ऐसे ही बोलता है, कुछ देखना। ठीक है, दूरदर्शन का भी अगर आपने ऑन भी किया है ना, एक बार दूरदर्शन चला लो, एक बार आपको वो ऐड दिख जाएगा, या फिर नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो जागो ग्राहक जागो ऐड। तो उसमें क्या होता है, इट इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योर राइट्स। कि जैसे उसमें एक ऐड आता है कि कोई सामने डिटर्जेंट बना होता है, उसमें कुछ कुछ दिक्कत होती है, तो फंसा कि आप फंस गए, तो नाउ दिस इज समथिंग बैड और आपका ये राइट है कि आप इसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। तो दिस इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। वी आर एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स। यस, so these were your 6 rights. Again, I am repeating: right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, and right to seek redressal, and last, right to consumer education. Is it clear, guys? Sure? Okay. चलो सर, राइट्स हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम बोलते हैं इंडिया इज डर्टी, इंडिया गंदा है भाई, लोगों ने अब मुझे एक बात बताओ, आई एग्री इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो क्लीन करवाए, बट क्या हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम हर जगह कूड़ा फेंक देते हैं। जो लोग पान खाते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं, वो स्प्लिट कर देते हैं कहीं पे भी। अगर आप ट्रेन में जाओगे तो वह स्प्लिटिंग दिखती है आपको कोने में। क्यों? तो इससे गलत मैसेज जाता है अबाउट इंडिया। तो हमें खुद से भी फिक्स करना पड़ेगा। यस, गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, कैंपेन्स करने चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान जैसे, और दिस इज गुड, बट कहीं उन्हें और इंप्रूव करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं एज अ पर्सन खुद से बात करो, हमें भी तो इंप्रूव करना चाहिए, राइट? तो हमें भी क्लीनिंग का ध्यान रखना चाहिए, ये मैसेज मैं देना चाहता हूं। ठीक है, अब उसी वे में लाइकवाइज देयर आर राइट्स फॉर कंज्यूमर की कुछ गलत हो जाए तो आपके पास राइट्स है, बट आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि एज अ कंज्यूमर आप भी कुछ चीजों का खुद से ध्यान रखो। तो व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? लेट अस लुक एट दैट। ओके, फर्स्ट इज बी अवेयर। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के ट्रेंड्स, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, व्हाट आर द सर्विसेज, व्हाट इज द प्राइस, यू शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग। एज अ कंज्यूमर आपको अवेयर होना चाहिए। तो consumers should be knowledgeable about the available products and services in the market to make intelligent and informed decisions. Example, compare prices, features and reviews before buying a mobile phone. कि आप मोबाइल शॉप में गए खरीदने से पहले, उससे पहले आप फोन में इंटरनेट पे सब चेक करके जाओगे फीचर। ठीक है, ताकि आपको कोई पागल ना बना दे। तो आप खुद से भी अवेयर हो। ठीक है, सेकेंड इज बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। अब ये क्या है? एक स्टैंडर्ड वाले जो प्रोडक्ट आते हैं वो खरीदते हैं। मैं नहीं कह रहा बड़ी बड़ी ब्रांड्स, नो, नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, बट आपको मेक श्योर क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हो उस पर खरीद रहे हो तो आईएसआई मार्क वाला ही लो, लोकल मत लो। यस, वोकल फॉर लोकल, लोकल प्रोडक्ट भी वो लो जिसमें आईएसआई है। आईएसआई मार्क इस, और इससे आपको एक एमसीक्यू भी पता चल गया कि पूछ सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे हमें कौन सा मार्क देखना होता है, दैट इज आईएसआई, आईएसआई। ठीक है, नेक्स्ट
फूड आइटम्स में हमें क्या दिखना चाहिए कि फूड एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, सेफ है ना, तो देन एफपीओ मार्क, एफपीओ। फूड में क्या देखते हैं, एफपीओ, राइट। देन ज्वेलरी, ज्वेलरी पे क्या होना चाहिए, हॉलमार्क, कि ज्वेलरी में कुछ मिक्स नहीं है, ज्वेलरी एकदम श्योर है, ज्वेलरी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। दिस इज व्हाट हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी, सो यू हैव टू बाय स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। नाउ नेक्स्ट इज लर्न अबाउट रिस्क एंड यूज प्रोडक्ट सेफली। देयर आर सर्टेन, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है डेंजरस फॉर किड्स, उसमें उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने अपना काम पूरा करा, तो हमने अगर वो किड्स को दे दिया तो हमारी गलती है, उनकी नहीं। तो वी हैव टू नो, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद सम सर्टेन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हमें पता होना चाहिए इसको हमें ऐसे नहीं चलाना, इसको ऐसे लिखा होता है ना, प्लीज स्टोर इन अ वेट, प्लीज स्टोर इन अ वेट प्लेस या प्लीज स्टोर इन अ ड्राई प्लेस, कुछ भी लिखा होता है कि इस दवाई को प्लीज कीप इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब डिपेंड करता है, सबकी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होती है, सो वी शुड रीड इट। ओके, नेक्स्ट इज रीड लेबल्स, वही हमें लेबल्स पढ़ने चाहिए। चेक लेबल्स फॉर इंपॉर्टेंट डिटेल्स सच एज प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट बिफोर परचेज, राइट। जैसे मान लो आप गए, आपने खरीद लिया, अब आप बोलोगे तो आपने उसी टाइम देख लिया एक्सपायर्ड है, आपने बोल दिया, तो आप उसी टाइम कंप्लेंट कर सकते हो। बट मान लो आपने खरीद लिया, 20 दिन बाद आप चेक कर रहे हो तो एक्सपायर्ड है, किसकी गलती है, आपकी। आपके पास था विजिबल, आपको देखना चाहिए था, राइट। While buying medicines, ensures you check the expiry date। भैया हमें मेडिसिन दे दो, हम बोलते हैं ना ऐसे, वो दे देते हैं, तुम डेट ही चेक नहीं करते, सीधा जेब में डाल देते हो और खा लेते हो। प्लीज चेक द डेट्स ऑन मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट, assert your rights for a fair deal। इसका मतलब क्या है, मम्मियां बन जाओ, मम्मी, आई एम मिसिंग माई मम्मी। क्यों, मम्मी ने मुझे बार्गेन करना सिखाया है। होता है ना, मार्केट में जाते हैं, ये शर्ट कितने की दी है, वो बोलता है 700 की, मम्मी कहती है 200 से ज्यादा नहीं दूंगी, अच्छा आंटी 600 दे दो, मैं कहता हूँ ठीक है भैया 500 की लगा लो, मुझे लगेगा कि 200 रुपये कम करा दिए, वाह। मम्मी कहती है 200 से 1 रुपये नहीं दूंगी, चलो निकलो। जैसी मम्मी जाने लगती है तो पीछे से आवाज आती है, रुको, तो फिर रुक के हम पीछे मुड़ते हैं, वो कहता है ले जाओ। फिर हम शॉक हो जाते हैं, ये क्या हो गया, 700 बोला था 200 में दे दी, वाह 500 रुपये का डिस्काउंट। तो दिस इज वॉट, यही हम बोल रहे हैं फेयर डील, कि हमारे पास राइट है फेयर डील के बारे में आज करें। अब ये नहीं बोल रहा बोल दो 50 रुपए में दे दे, कम से कम उसकी फेयर वैल्यू हमें भी देनी है, ठीक है, इतनी ज्यादा नेगोशिएशन भी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट, बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, अवॉइड इंडल्जिंग इन सपोर्टिंग इलीगल प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग, डू नॉट परचेज गुड्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड सेलर्स टू एनकरेज होर्डिंग, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज या इलीगली कोई बेच रहा है कोई सामान, उसको मत खरीदो। एज अ कंज्यूमर आपको ध्यान रखना है कि आप इलीगल जगह से नहीं खरीद रहे हो, आप एक ट्रस्टेड सोर्स से परचेज कर रहे हो कुछ भी। नेक्स्ट इज आस्क फॉर अ कैश मेमो, वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं ना बिल नहीं लिया, बिल नहीं लिया। अगर जैसे मान लो आप किसी नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर पे गए, जहां पे आपको, फिर आपने कार्ड से पे करा, यूपीआई से पे किया, आपको बिल मिला, अब बिल हम आते हैं घर पे फेंक देते हैं। अब आपको बाद में पता चला कि एक प्रोडक्ट में जो आपने 500-700 का खरीदा था, उस पर देयर इज अ डिफेक्ट। नाउ यू वेंट टू द स्टोर एंड यू सेड देयर इज अ डिफेक्ट इन दिस, वो कहेंगे ठीक है रिटर्न कर देंगे, आप बिल दिखाओ। अब आप बोलोगे बिल नहीं है मेरे पास, देन यू आर रॉन्ग। एज अ कंज्यूमर यू शुड कीप योर बिल्स सेफ। एक बार आप प्रोडक्ट चेक कर लो, घर जाके सब कुछ सही है तो फिर बिल फेंक दो, नो इश्यूज, बट एक बार री वेरीफाई आपको करना चाहिए सारा सामान इज सेफ और नॉट। तो बिल्स रखना, कैश मेमो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिसीट। फाइल कंप्लेंट फॉर सब स्टैंडर्ड गुड्स, तो अगर आपको पता चला सब स्टैंडर्ड गुड्स है तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। लॉन्च अ कंप्लेंट इफ अ न्यूली परचेज मोबाइल फोन हैज डिफेक्ट डिस्पाइट बीइंग अंडर वारंटी, राइट। नेक्स्ट, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज। व्हाट इज दिस, सर्टेन सोसाइटीज, हम एक सोसाइटी बना लेते हैं जिसमें सारे कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम बताते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन देते हैं। तो ऐसी सोसाइटी आप भी फॉर्म करो ताकि बाकी लोगों को भी पता चले अबाउट देयर राइट्स। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड अननेसेसरी वेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ आइटम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। एग्जाम्पल, रिड्यूस प्लास्टिक यूज एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन डिजाइन। तो इसका मतलब क्या बन रहा है, जैसे मान लो आप कुछ ऐसा सामान खरीदो खुद ही जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली। अब मैं नहीं कह रहा ज्यादा महंगा खरीद लो इसलिए, नो। अगर आपको सेम सेम चीज खर्च करके सेम अमाउंट थोड़ा ही ऊपर नीचे है, तो आप ऐसा प्रोडक्ट खरीदो कि वो जो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। दिस इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट का है पर हमारा भी है, तो हमें खुद के अंदर भी झांकना है, ठीक है, हमें देखना है, हमें समझना है। तो गाइस, दिस वाज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे लगता है आपको सारा समझ आ गया होगा। यू हैव द कंटेंट टू राइट। मैं एक बार जल्दी जल्दी कॉन्टेंट आपको सारा दिखा देता हूं, जिसको लिखने के लिए प्रैक्टिस करना है मैं साइड हो रहा हूं, और 1 सेकेंड आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
डन. सो दीज वर द स्लाइड्स. तो आई होप आपकी बहुत मदद हुई हो. ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और सेल्फ बिलीव तो तुम करते ही रहोगे. अब मैंने इतनी बार बोल दिया, मुझे पक्का भरोसा है सब पे, सब सेल्फ बिलीव करेंगे. आगे बढ़ते रहो. अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.